So everyone note down, you know that last day we started integration by parts, and today is the second day of that particular topic, integration by parts. I mean, in the last class, I just introduced actually the formula, nothing more than that, and gave few questions. Okay, I think you have got some doubts. So let me start. I think you have got 20 number 2. So the first doubt is 20 number 2. And the question is x square into log of 2x plus 1. So everyone, see the first doubt of today's class, and it is 20 sum number 2. Okay. Now, if we follow Eilert rule, according to Eilert rule, you find that logarithmic function will come first, and then we have algebraic function. So if we apply the formula, we have u, that is log of 2x plus 1, into integration of v minus ddx of minus integration of ddx of first function into integration of v dx. x square का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब by 3 log of 2x plus 1. What is ddx of log of 2x plus 1? It is 1 by 2x plus 1, and then further differentiation of 2x plus 1, which will give you 2. x square का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब by 3 keep 2 by 3 outside, and then the integral which we have is in the form polynomial by polynomial, where the degree of numerator is greater than the degree of denominator. So excuse me, so we need to divide and express in the form quotient plus remainder by divising. Now what is multiplied to 2x to get x cube? सबसे पहले ये 2 हटाना है, so let's multiply half. Now what is multiplied to x to get x cube? X square. So it is x cube plus half into x square. So we have minus half x square. Now what is multiplied to 2x to get minus half x square? सबसे पहले minus, क्योंकि यहाँ पे minus है. What is multiplied to 2 to get half? It is 1 by 4. What is multiplied to x to get x square? It is x. So ये हो गया minus half x square minus 1 by 4 x. Let us change the sign. So we have 1 by 4x. Now tell me everyone, what is multiplied to 2x so that the result is 1 by 4x? It is 1 by 8, 1 by 8. Okay. So we have 1 by 4x plus 1 by 8. So finally the remainder is minus 1 by 8. So we can write this as we can write dividend by divisor as quotient plus remainder, that is minus 1 by 8, by divisor, that is 2x plus 1. Okay, I think the integration part you all can do. Now बस एक part मैं बता दूं कि what is integration of, I mean this part 1 by 2x plus 1. Can you tell me what is integration of 1 by 2x plus 1? Yes. Log of 2x 1 by 2. मतलब into half, क्योंकि x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल, और उसके बाद इसको assume करके log of 2x plus 1. All right everyone? So I just explained you that part. अगर उसमें अगर किसी का डाउट होगा तो बस इसी पार्ट में होगा, बाकी तो सब नॉर्मल है. ठीक है, तो सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लो. तो ये हो गया x क्यूब by 8 log of 2x plus 1 minus 1 by 9
एक्स क्यूब प्लस, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 1/6 to the 12 into x square minus 1/12x minus plus 12 to the 24 log of 2x plus 1. Everyone please check your answer okay after integration. Okay, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, तुम लोग चेक कर लेना आंसर इंटीग्रेशन के बाद क्या ये आ रहे हैं. ओके, so you can copy down this case double. Please do fast. Now see, excuse me. See, in today's class now we are going to see कि एक बाय पार्ट्स के क्वेश्चन में कभी-कभी सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ सकता है. So how to identify कि उस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है या नहीं करना. Okay, so let's move ahead, okay, and let's see few examples which will help you all to identify कि क्या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का जरूरत है या नहीं. ओके, तो ध्यान से एक बार नोट करना. आई एम राइटिंग फ्यू एग्जांपल्स कि मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इससे पूरा क्लियर है. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज x into sin square x. Second example, x into tan square x. And the third example I'm taking is x cube sin x square. So I want everyone to pay attention. Okay, ध्यान देखो, सबसे बेस्ट सी इफ यू जस्ट फॉलो द स्टेप्स जो भी मैं बता रहा हूं, इसके बाद क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं भी, और तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको बाय पार्ट्स लगाना है और बाय पार्ट्स के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी करना है या नहीं करना है. इस तरीके से आराम से पता चलता है. तो ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स उठाए. नाउ लेट मी मेंशन द फर्स्ट पॉइंट. एक बात बताओ तुम लोग कि क्या हम लोग sin x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं इस फॉर्म में. टेल मी, क्या sin x स्क्वायर इस फॉर्म में है जहां पे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग को sin x का इंटीग्रेशन पता है कि माइनस cos x होता है कि नहीं. लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे इसमें x को अज्यूम करके, x स्क्वायर को अज्यूम करके, क्या मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बताओ. यस और नो. No, sir. Now why I cannot assume this as x? Because यहाँ पे जिस फंक्शन को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है. दूसरा पॉइंट ये है कि लीनियर एक्सप्रेशन का ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है. तो एक बात बताओ, ये x स्क्वायर लीनियर है? नहीं. क्या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कांस्टेंट है? नहीं. प्लीज आई कैन नॉट अज्यूम हियर. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट कि अगर मान लो सपोज tan स्क्वायर x दिया है, तो क्या tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट हम इस फॉर्म में रख के क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या करते हैं, we transform this into another form where integration can be easily done. These are two things. Now तीसरा पॉइंट कि जब हम लोग यूवी रूल अप्लाई करते हैं, तो अगर ध्यान से तुम नोट करो, तो जो सेकेंड फंक्शन है जिसको हम सेकेंड फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं, उस सेकेंड फंक्शन इज एवरी टाइम इन द फर्स्ट स्टेप यू फाइंड दैट इट इज टू बी इंटीग्रेटेड. देखो एक बार ध्यान से, तुम अगर ध्यान से नोट करो तो जो पहला वाला जो फंक्शन है वो एक बार बाहर हो जाता है और एक बार उसका डिफरेंशिएशन निकालता है, और जो सेकंड फंक्शन है वो हमेशा इंटीग्रेट होता है. देखो यहाँ, ठीक है. तो याद रखो हमको करना क्या है, अगर हमको कोई भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहला पॉइंट, लेट्स फॉलो आइलेट रूल एंड लेट्स बी श्योर कि क्या आइलेट रूल के हिसाब से फंक्शंस अरेंज है या नहीं. ठीक है. तो एक बार बताओ, क्या आइलेट रूल के हिसाब से ये फंक्शन अरेंज है? यस. पहले ए आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मतलब मुझे इस बात का ध्यान रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आइलेट रूल को सैटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब अब हमको क्या करना है, देखो नेक्स्ट, अब हमको देखना है कि जो दूसरा फंक्शन है, जो सेकंड फंक्शन, क्या वो इंडिपेंडेंटली मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो अकेले, मतलब वो किसी के साथ ना रख करके भी अगर हम उसको अकेले इंटीग्रेट करें तो क्या वो इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं. समझ में क्या बोल रहा हूं, क्या वो उसको हम अकेले इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो सबसे पहला सवाल तुम मुझसे मेरा ये है कि क्या अगर हम अकेले साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करें
क्या हम अकेले tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करें या फिर हम सेकंड फंक्शन जो यहाँ पे है sin x स्क्वायर, तो क्या sin x स्क्वायर कैन बी इंटीग्रेटेड? यस और नो? क्या मैं sin x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। किसके कारण नहीं हो पा रहा है बताओ तो इंटीग्रेशन? तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर के कारण नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करके मैं इस पूरे इंटीग्रल को किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूंगा सच दैट वहां पे ऐसा प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे यूजर रूल अप्लाई कर दूं तो इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। देखो इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे? क्या ये इंटीग्रेट हो पाएगा? नहीं। तो इस तरह का सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले ही हम चेक कर लेंगे कि क्या इस तरह का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या बोला, फॉलो आइलेट रूल एंड चेक whether the second function independently can be integrated or not. If you have some problem, there are two kinds of problem you may face. One problem is this particular kind of problem where you cannot assume that particular function. जैसे यहाँ पे हम x स्क्वायर को assume करके इंटीग्रेट नहीं कर पाते। दूसरा तरह का प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर सकते हैं वो ये है कि जहां पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म में है कि मुझे उसको किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो तरह का हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। So let us see how to solve these kind of sums, as we know that there are two types of problem it can arise. Okay, so let's see how to solve. तो ध्यान देना एक बार क्या होगा इस टाइप के समय हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको इस फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में जहां पे इसका इंटीग्रेशन हो पाए। दैट इज वी कैन राइट sin स्क्वायर x as 1 minus cos 2x whole thing divided by 2। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हाफ बाहर रख करके और x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके एंड वी विल इंटीग्रेट half x minus half integration of x cos 2x. What is integration of x? और यहां पे क्या करेंगे लोग बताओ तो, how to integrate these type of integral? Yes, we'll apply UV rule, but it is better that you consider this as I1 and do integration separately, because you don't have to write down this particular term unnecessarily every time, right? So let us consider this as I1 and integrate separately. Clear? अब देखो यहाँ पे हम easily इस particular function को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बताओ तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा? हाफ sin 2x। कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो देख रहे हैं तुम लोग, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये सारे छोटे छोटे चीज को अगर हम चेक कर ले तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। इट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का पूरा इंटीग्रेशन। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ sin 2x, d dx of x is half cos sin 2x. So we have x by 2 sin 2x, हाफ बाहर ले लेते हैं और sin 2x का इंटीग्रेशन लेटर ऑन will be how much? minus half cos 2x. I mean half आ गया, तो half into half क्या हो जाएगा? 1/4 और minus into minus plus. Now don't give plus here, okay? क्योंकि अभी हम लोग इस पूरे इंटीग्रल का हम लोग सब इंटीग्रल मतलब सब पार्ट को सॉल्व करेंगे। So what will be I? So I will be how much? X square by 4 minus half times this integral जिसको हम लोग ने I1 लिया। अब जब यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, इसके जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे लास्ट में? C. Okay, so we can say that I equals to x square by 4 minus x by 4 sin 2x minus 1 by 8 cos 2x plus C is your final answer. All right, और ये वाले समय हम क्या करें?
क्या यहाँ पे हम tan स्क्वायर x को किसी ऐसा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जहां पे इसका इंटीग्रेशन मतलब वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल को मैच कर पाएगा, मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला को मैच कर पाएगा? यस, आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। स्टैंडर्ड tan स्क्वायर x का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x minus 1, x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके, and then you can integrate the same. All right everyone, so copy down this first example. Third one देखो, एक बार तीसरा वाला देखो। तीसरा वाले में प्रॉब्लम क्या रेज हो रहा था, sin x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अकेले पॉसिबल सिर्फ किसके कारण नहीं हो पा रहा था बताओ तो, x स्क्वायर के कारण नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हम sin x स्क्वायर को तो किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे, बट वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को t ले लेते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो आई विल बिकम, नोट डाउन, x क्यूब में से x का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, देखो x क्यूब में से x का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर sin t dt, x स्क्वायर यहाँ पे बच गया, तो x स्क्वायर को क्या चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा ना। इसके बाद बताओ क्या करना चाहिए, सम को यूवी रूल अप्लाई करके हो जाएगा कंप्लीट। तो फटाफट इस सम को और ये सम को कॉपी करो, ये सम को यहाँ तक कॉपी करके रहने दो, इसको बाद में तुम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लीज डू फास्ट, कंप्लीट फास्ट। This is not the step of the second question, ये इस सम का कंटिन्यूएशन है, ये वाले सम का ये कंटिन्यूएशन है, ये वाला प्लीज नोट डाउन एवरीवन। ओके, अगर देखा जाए देखो ये वाले स्टेप के बाद ये है, ओके ये तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने कहा है कि you multiply this x with both the terms and integrate and complete this atom. Okay, Okay, sir आपको now everyone note down question number 20 का 8 नंबर में सम नंबर e नहीं करना है, all right, and सम नंबर f मैं तुम लोग से पूछता हूं एक बार, सम नंबर f please don't do unnecessary substitution. Okay, मैं बता रहा हूं, मैंने भी जो लॉजिक बताया लॉजिक को यूज करना है, और मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या इस सम में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। सर करना चाहिए, यस करना चाहिए। करना चाहिए। चलो मैं एक बार चेक करता हूं जो मैंने भी स्टेप्स बताए, क्या तुम लोगों ने अभी जो मैंने स्टेप्स बताए उस स्टेप्स को फॉलो किया तुम लोग, वन स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम इस आइलेट रूल को फॉलो करें तो पहले कौन सा फंक्शन को लिखना होगा, log of cos x, उसके बाद किस फंक्शन को लिखना होगा, sin x। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जो सेकंड फंक्शन है वो हमको यही ना चेक करना होता है कि क्या वो अकेले इंटीग्रेट किया जा सकता है, नहीं क्या वो ऐसा फॉर्म में है जहां पे इंटीग्रेशन किया जा सकता है, यस। सो डू यू रिक्वायर आई मीन सब्स्टिट्यूशन हियर, आई डोंट थिंक यू नीड सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज़ ये एक लाइन में तुम्हारा हो जाएगा, जितने में हम सब्स्टिट्यूशन अपने टाइम लगाएंगे उतना में सब खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, u इंटीग्रेशन ऑफ v, all right, ddx of log cos x 1 by cos x into minus sin x into minus प्लस। तो देखो तुम जितने में सब्स्टिट्यूशन करोगे ना उतना जो है तो तुम्हारा सम कंप्लीट होंगे। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे तो तुम्हारा सम रॉन्ग हो जाएगा, और मैं कंप्लीट नहीं किया, प्लीज कंप्लीट, मेक श्योर दैट इस एक ही लाइन तो है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। बट अगर तुम सब्स्टिट्यूट करो ये सोच के कि cos x का डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो हट जाएगा, तो बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही सोचा है तुमने। ओके, इज दिस क्लियर? तो sin x dx की जगह पे माइनस dt और cos x की जगह t लगा देते हैं। याद है लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन अकेले हो इंटीग्रेशन में
तो इसमें यूवी रूल कैसे अप्लाई किया जाता है बताओ तो? मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करके 1 को इसके साथ क्यों पता है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एवरीथिंग, तो 1 को सेकंड फंक्शन लेके यहां पे यूवी रूल अप्लाई करो। पर तुम खुद देखो जितना मैं अनु ने ये टाइम लगा उतना में सब ओवर है, बट गलत ये नहीं। तो मैं यही बोलूंगा तुम लोग को कि जो मैंने तुम लोग को स्टेप्स बताया ना बाय पार्ट्स में, पहला कि उसको अरेंज कर लो आइलेट रूल के हिसाब से, उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है वो देखो अकेले क्या वो इंटीग्रेट किया जा सकते हैं नहीं, फिर देखो कि अगर नहीं किया जा सकता तो किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फंक्शन को क्या हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी ऐसा फॉर्म में जहां पे इंटीग्रेशन इजीली हो पाए, या फिर देखो कि किसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें हम अज्यूम नहीं कर पा रहे तो उसको सब्स्टिट्यूट करो। इस तरह का हम लोग लेकर के हम लोग सम्स कर सकते हैं, तो सम बहुत आसान हो जाए और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऑलराइट, So plus की जगह माइनस माइनस अंदर प्लस हो गया, सब बाहर तो माइनस ही रहे। माइनस 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 प्लस, ओके फाइन, सॉरी, ओके, इज दिस क्लियर? ये लास्ट में आंसर लिख देना तुम, ठीक है, अभी वाली तो फटाफट इसको कंप्लीट करना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, एंड दैट इज सम नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। Everyone note down excuse me, the first question of number 7, 20 का 7 का a, and the question is x into sin cube x into cos x. So this is the question we have. Okay, what is the question? It is x into sin cube x into cos x. Now मैं यहाँ पे तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। पहले मुझे सोच के बताओ। एक और चीज मैं बता दूं कि sin theta equals to x can also be represented as theta equals to, and similarly for other functions also. Now तुम लोग एक बार सोचो, दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए। अलजेब्रिक और टिपिकल कर देगा। So everyone note down, एक मिनट। तो एक बार ध्यान देना, तो तुम लोग जो बोल रहे हैं कि sin x को t लेने के लिए तुम लोग इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे sin क्यूब x है तो इसको sin x का होल क्यूब लिख देते हैं, और यहाँ पे अगर हम sin x को t ले लें तो sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। So cos x dx can be replaced with dt, all right? So I will become x sin x की जगह t लग जाएगा, ये t क्यूब हो जाएगा, cos x dx की जगह dt लगा दो। अब बचा यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे तो साइन इनवर्स क्या करेंगे, अगर sin x t तो x क्या हो जाएगा, sin इनवर्स t हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आइलेट रूल के हिसाब से पहले इनवर्स फिर t क्यूब लिख के हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बट डोंट कॉपी, अवॉइड दिस, avoid that integrate, okay, avoid any such operation which results integrating inverse trigonometric function। मतलब कोई भी चीज को अवॉइड करो अगर वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में होगा तो। ओके, दिस इज क्लियर और नॉट? बिकॉज़ देखो ऐसा नहीं कि सम नहीं होगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा मैं बता रहा हूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर रहेगा तो सम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कुछ चीज हट चुका है जिस पे अगर हम इनवर्स फंक्शन में रख के सम को करें तो प्रॉब्लम होगा। सो लेट अस इग्नोर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। So this is not wrong, but we are just ignoring because we want to avoid any function which is given in form of inverse trigonometric function. All right? तो मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा हूं, तो फिर करेंगे क्या हम लोग, क्या करेंगे? So what is to be done? इस चीज को अगर हम अवॉइड करेंगे तो क्या करेंगे? अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, the problem is not just because of x, लेकिन अगर x हट जाए और ऐसा हो तो एकदम बहुत बढ़िया से हो जाएगा सब सॉल्व। हम लोग sin x को t लेंगे, sin x का डेरिवेटिव से cos x रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर तुम फार्मूला को ध्यान से नोट करो, u विल के फार्मूला को अगर ध्यान से नोट करो तो u पहले बाहर आ जाता है, देखो u बाहर रह जाता है, और इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं बताओ तो, माइनस डिफरेंशिएशन हो जाता है इसमें u का, और इंटीग्रेट किसका होता है। तुम एक चीज देख रहे हो यहाँ पे बहुत बढ़िया से कि एक बार u बाहर रह जा रहा है और एक बार u का डिफरेंशिएशन हो जा रहा है।
मतलब एक चीज देख रहे हो तुम, अगर हम यहाँ पे आइनेट रूल को फॉलो करें तो x हो जाएगा u और sin x into cos x बन जाएगा v, और अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूं सो इट इज u दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ddx of u into integration of v that is sin x का होल क्यूब into cos x। ऑलराइट, अब तुम ध्यान से अगर नोट करो तो ये वाला इंटीग्रेट और ये वाला इंटीग्रेट तो सेम ही है ना, क्या ये अलग अलग है? नहीं, ये दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे ddx of x है, और इतना बड़ा चीज, मतलब ये दोनों सेम चीज को पूरा सम को बार बार रिपीट ना करके सेम स्टेप्स को हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग से i1 ले लेंगे। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, i1 ले लेंगे। ठीक है, तो समझ में मैंने क्यों लिया अलग से i1, क्योंकि देखो इसमें ही हम sin x को t लेके कर सकते हैं, बट तुम देखो ड्रॉबैक देखो इस तरीके को करने से, ड्रॉबैक ये है, गलत मतलब ये इसका मतलब डिसएडवांटेज ये है कि ये इंटीग्रेट और ये इंटीग्रेट दोनों सेम चीज है, और हम ये दो चीज को बार बार हम दो बार रिपीट करेंगे, साथ में x और ये चीज को बार बार लिखेंगे। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेट को i1 ले रहे हैं। अब देखो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें sin x को तो ये हो जाएगा cos x dx equals to dt, so i1 becomes t cube cos x dx की जगह dt, t cube का इंटीग्रेशन t to the power 4 by 4, डोंट गिव प्लस सी बिकॉज़ अभी सम खत्म नहीं हुआ, अभी तो इस पार्ट का ये सब पार्ट है, इंटीग्रेशन हो गया, अब t की जगह पे sin x लगा। Okay, now let's come back to the integrand once again. So if we come back to the integrand, so I will become x into I1. What is the value of I1? Sin x to the power 4 by 4 minus what is ddx of x? और इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो, अब मुझे कोई बता सकता है कि इसका ये जो इंटीग्रेंड है जो दिख रहा है तुम लोग को, ये कैसे हो पाएगा, बताओ तो, ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा, कैन यू टेल मी, डू यू रिमेंबर Even powers. यस Even powers of sin and cos. यस, याद है ये कैसे किया जाता है, इवन पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन, इसमें पावर को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसमें पावर को रिड्यूस किया जाएगा, कैसे, पहले इसको sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ओके, तो यहां तक पहले कॉपी करो और कोशिश करो, थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करें। You know how to integrate even powers of sin and cos, so please complete first. So everyone note down this part, okay? ये ऑलरेडी पहले किया ही हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x by 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हो जाए 16। यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब वापस से यहाँ पे cos स्क्वायर 2x, ये ऑलरेडी बताया गया चीज, इस तरह का फंक्शंस का इंटीग्रेशन ऑलरेडी बता दिया गया। cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x होल थिंग डिवाइड बाय 2, ओके, 2 16 जा 32,
and then you can integrate this. All right. Now the next question of number 7, अगर तुम देखो तो सारा एक जैसे ही है, ठीक है, सब एक जैसे हैं. You can try all the questions at home. Okay. Now we'll start question number 9. 9 का देखना क्या है. 9 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक बार इसको कंप्लीट कर लो पहले. Now next type is, write down. It's another type of question, and it is non-terminating. Non-terminating, but repeating time. Okay, मतलब यहाँ पे देखना तुम, जो हम लोग इंटीग्रेट स्टार्ट करेंगे जहां से, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, वो क्वेश्चन का जो इंटीग्रेट है, वो इंटीग्रेट जो है बार बार रिपीट करेंगे. ठीक है, तो किस तरह से हम इस तरह का क्वेश्चंस को करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेट्स से e to the power x into sin x. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद e to the power x into sin x. और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप यूजुअली एक्सप्रेस e to the power x के साथ अगर कोई और फंक्शन होगा जैसे कि sin या cos, तब जाके इस तरह का फंक्शन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप होता है. ठीक है, और भी बहुत तरह का होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में मोस्टली इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइलेट रूल फॉलो करके इसको अरेंज कर देंगे. तो बताओ, तो अगर हम आइलेट रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो पहले कौन सा फंक्शन आएगा, उसके बाद, ठीक है. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला इज u into integration of v minus integration of ddx of first function into integration of second function का जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है. Now what is integration of e to the power x? What is ddx of sin x? Cos x. Cos x होता है, और e का पावर x का e का पावर x है. अब वापस से यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट आएगा. लेट्स अप्लाई u rule once again. So the formula is u into integration of v, मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ e to the power x minus ddx of cos x into integration of v dx. तुम अगर ध्यान से नोट करो तो जहां हम लोग ने स्टार्ट किया था जिस क्वेश्चन से, वही क्वेश्चन वापस से रिपीट करके देखो, है कि नहीं. चेक कर लो, जिस इंटीग्रेट से हमने स्टार्ट किया था वही इंटीग्रेट वापस से रिपीट करके, माइनस 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 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस. तो ये इंटीग्रेट वापस से रिपीट करेंगे तो इसको क्या चीज से डिनोट कर देंगे, i से. क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे हम लोग, i से रिप्लेस कर देंगे. सो यू विल गेट i equals to e to the power x into sin x minus e to the power x into cos x minus i. All right, minus i लेफ्ट में आ जाएगा, तो i plus i will become how much, 2i. और i क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स e to the power x sin x minus e to the power x cos x plus this is your answer. I hope it is clear to everyone. ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो सम दे रहा हूँ, एक बार सबको इसको ट्राई करो. एक है e to the power 2x into cos 3x. एक ही सम, दो सम देने की जरूरत नहीं, एक ही टाइप के सम. ओके, इसको कॉपी करो, तो इसको कॉपी कर लो, 1 and number 2 को भी कंप्लीट करो. ओके, डू इट फास्ट. So everyone note down. So I'll just write down the answer. Okay. So you just look here, everyone. So आइलेट रूल के हिसाब से पहले हम लोग को cos 3x लिखना पड़ेगा, उसके बाद e to the power 2x. So the formula is u into integration of v minus ddx of cos 3x
minus minus plus 3/2. All right, let's apply UV rule once again. So it is u, that is sin 3x, into integration of v. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देना आंसर, मतलब बहुत सारी चीज. ddx of sin 3x is 3 cos 3x. Okay. Now let's open the bracket. So we have 3/4 sin 3x e to the power 2x, plus into minus is minus, 3/2 into 3/2 is 9/4. ऑलराइट, अब देखो ये रिपीट करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था. इस जगह पे अगर हम लोग i लगा दें तो ये 9/4 आई हो जाएगा. लेफ्ट में लेके आ जाओ. Okay, what is I plus 9/4i? 13/4i. और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो लास्ट में आंसर हो जाएगा 4/30 half e to the power 2x cos 3x plus 3/4 sin 3x e to the power 2x. This is your answer, final answer. Please check. You can multiply 4/30 in all the terms. Okay? ठीक है, सबका मैच किया आंसर देख लो एक बार. Now see, if you remember, याद होगा तुम लोगों को कि मैंने sec का इवन पावर तो कराया था लेकिन ऑड पावर नहीं कराया था. ठीक है, और तुम लोगों ने पूछा भी था कि हाउ टू इंटीग्रेट ऑड पावर्स ऑफ sec फंक्शन. So now let us see this sum. और sec का ऑड पावर में sec क्यूब x और cosec क्यूब x तुम लोग मतलब इतना ही तक करो. ठीक है, उससे ज्यादा हायर पावर को करने का जरूरत नहीं. सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? इसको हम फैक्टराइज करेंगे sec x into sec square x. अब मुझे ये बताओ कि किस फंक्शन को u और किस फंक्शन को v लेना चाहिए. बताओ, सोच के बताना. इस फॉर्मूला को देख के बताना कि किस फंक्शन को u लेना ज्यादा बेटर होगा और किस फंक्शन को v लेना ज्यादा बेटर होगा. sec square x को square x को u और sec x u और sec square x v. देखो क्यों सेकंड फंक्शन को v लेना बेटर होगा. देखो क्योंकि सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर आता है और इंटीग्रेशन ऑफ sec square x tan x वो की ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में है एज कंपेयर्ड टू sec x का इंटीग्रेशन. ठीक है, तो हम लोग को चीजों को सिंपल रखने के लिए sec x को u ले लेते हैं, sec square x को v ले लेते हैं. एंड लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, now what is integration of sec square x? Is tan x. What is ddx of sec x? sec x tan. Tan x into tan x becomes tan square x. अब देखो इसको tan square x को क्या करेंगे हम लोग, इसको रीयूज करने के लिए हम tan square x को sec square x minus 1 लिख देंगे. समझ में? रीयूज क्यों बोला मैंने? सेम चीज वापस से आ जाएगी. अच्छा, समझ में मैंने क्या किया? sec x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके और अलग अलग करके इंटीग्रेट. ठीक है, sec cube x माइनस प्लस माइनस
माइनस माइनस प्लस sec x into 1 is sec x। अब तुमको दिख रहा है ये sec cube x ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस आई प्लस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x, याद है, भूल गया तो आई को लेफ्ट में लेके आ जाओ, 2i तो फाइनली आई क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स sec x into tan x। ऑलराइट, प्लस सी का आंसर समझ में। तो जो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा, इस तरह का हम लोग सम्स हम लोग ने दो टाइप किए और दोनों टाइप कर लो, बस इसके अंदर जो ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए। नाउ I said you that this is the last sum of today's class. So everyone copy down and जो मैं आज होमवर्क फॉरवर्ड करूंगा उस होमवर्क को याद करो, क्योंकि बहुत लोग फेल कर हो जा रहे हैं, मतलब होमवर्क नहीं कर पा रहे टाइम पे, जिसके कारण सारा का सारा पीछे का क्लासेस बैकलॉग होते जा रहा है। प्लीज डोंट डू दैट। एंड जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज ही इसको कंप्लीट करो, so that you can attend the next class positively. With this, I am ending today's class.